RPN Singh factor or his impact. Explain to our viewers why Purvanchal region is important in this fight for Uttar Pradesh. Uttar Pradesh के इस इलाके से, I'm just letting the viewers know that there are 21 districts जो पूर्वांचल region में fall करते हैं, and almost a third of Vidhan Sabha seats. I think 130 seats हैं, Yashwant. Yeah, of course. I mean, it's a big region, and why it is critical, it's actually very easy to understand. I tell you, Aditi. First of all, if you will look into the UP politics from 2013 riots in the Western UP onwards, so the three mandates, 14, 17, and 19, if you look very carefully, in the Western UP was actually the only region in Uttar Pradesh which actually delivered a communally polarized mandate. The rest of the regions did not actually give a communally polarized mandate, not even in 2014. And this is very critical to understand, because when you see the changes in the Western UP, and of course there was a Kisan Andolan and everything, but the issue with the communally polarized mandates is there कि जब वो पोलराइजेशन कम होता है तो मैंडेट उलट भी जाता है. सो अगर वेस्टर्न यूपी का वो पोलराइजेशन कम होगा तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, ये बात समझना इजी था. लेकिन बचे हुए यूपी में जहां पर कि उस तरह का पोलराइजेशन 14 में नहीं था, अभी का एक अलग आप कर लीजिए, हर चीज में पोलराइजेशन कम्युनल उसमें हर नैरेटिव में डाल दिया जाता है, दैट्स अनदर थिंग. बट there was caste equation, developmental factors, the very fact that Prime Minister Modi was a candidate from Purvanchal, and now the fact that the Chief Minister Yogi comes from Purvanchal. That makes Purvanchal extremely important, more so because after Western UP, it is probably the area where the contest is close, where there is, a touch and go, and you can see a good contest on each and every seat. You can look into the tracker data. Bundelkhand is not close that way. Awadh is not close that way. In Rohelkhand and in Western UP, there is a polarized thing. So whenever the Jat will go with Muslim factor, that will deliver a blow to the BJP. Otherwise, it will still remain a pro-BJP vote now that the feedback that we are getting from the ground in Western UP. So when you look into the Eastern UP, Purvanchal का block जो है, वो बद्री जी ज्यादा बेहतर बताएंगे. लेकिन दरअसल अगर आप सोचेंगे कि ये रीजन कैसे बांटा जाता है, यशवंत, ये रीजन आपने डिसाइड कैसे किया, पूरबिया जिसे कहा जाता है, तो हमने नहीं डिसाइड किया. नॉर्मली रीजन्स जो है वो हिस्टोरिकली, कल्चरल या लिंग्विस्टिक आधार के ऊपर निकल लेते हैं, या जो आप एग्रेरियन जियोग्राफी कहते हैं उसके आधार पर बनाए जाते हैं, बनते हैं, क्योंकि वो उसका कल्चर प्रभावित होता है. अगर आप स्ट्रिक्ट टर्म्स में बोले तो पूर्वांचल आइडियली वो इलाका होना चाहिए जहां पे भोजपुरी या पूरबिया मगही वो वाली लैंग्वेज बोली जाती है, डायलेक्ट. लेकिन हमारे आज के पूर्वांचल में केवल भोजपुरी वाला इलाका नहीं आता, उसमें अवधी वाले भी कई सारे इलाके आते हैं. मसलन इलाहाबाद को पूर्वांचल में माना जाता है, जबकि इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इधर की पूरी साइड में अवधी बोली जाती है, वहां पे भोजपुरी नहीं बोली जाती. तो पूर्वांचल आप एक तरह से मोटा तरह पे आप मान के चलिए कि अवध जहां खत्म होता है, अवध के उधर जो कुछ भी है ईस्ट में, वो सब पूर्वांचल है. एक तरह से आप इसको इस तरीके से let me bring in प्रोफेसर बद्री. प्रोफेसर बद्री, आप बताइए कि एक सहयोगी है कि इस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं. बीजेपी को पता है कि अगर पूर्वांचल की ये जो 1/3 सीट्स है, 33% सीट्स पर कब्जा कर लिया, तो there is nothing that will stop their return back to power. But Akhilesh Yadav also knows the same thing, so he's made his strategy accordingly. लेकिन आप मुझे बताइए कि how RPN सिंह के अब जाने से ऊपर एक तो ऑप्टिक्स में और दूसरा ग्राउंड पर क्या फर्क पड़ेगा पूर्वांचल में बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि इससे काफी तगड़ा फर्क पड़ने वाला है. जी, मेरा एक तो ये मेरा कहना है कि पहले तो पूर्वांचल जो पूरा जोन है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जोन है इलेक्टोरली, जो इलेक्टोरल इलेक्शन पॉलिटिक्स को लेकर के. एक तरफ मोदी योगी आप देख ही रहे हैं, जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के वो वहाँ से हैं.
दूसरी तरफ फॉर अखिलेश यादव और मायावती नॉट इन अ पर्सन बट मायावती एज एन इमेज, ये जो क्षेत्र है इन दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप देखें ओबीसी पॉलिटिक्स, अगर आप देखें दलित पॉलिटिक्स, तो दोनों के लिए ही ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईस्टर्न यूपी में बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है इस चुनाव में। वोटों का प्रतिशत क्या होगा या घटना बढ़ना क्या होगा, वो यशवंत जी अपनी सर्वेज में दिखाते ही रहते हैं और आगे दिखाएंगे भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो और इलाहाबाद से जब आप इंटर करते हैं तो पूरा एक जोन है जो ईस्टर्न यूपी में, इलाहाबाद को दरवाजा कहते हैं ईस्टर्न यूपी का। और मेरा मैं कई बार मैं ये देखता हूँ कि जो ईस्टर्न यूपी में हो रहा होता है वो अवध को बहुत प्रभावित करता है, और अवध में जो हो रहा होता है वो ईस्टर्न यूपी को प्रभावित करता है, उनके जो इलेक्टोरल माइंडसेट को। तो वो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी का ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन ईस्टर्न यूपी और अवध का बड़ा क्लोज संबंध है इस मामले में। तो अगर वहां कोई महत्वपूर्ण होगा वो अवध को भी प्रभावित करेगा, और अवध में महत्वपूर्ण होगा तो ईस्टर्न यूपी के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा, दो मामले में। तीसरी बात जो आरपीएन सिंह का है, देखिए आरपीएन सिंह कभी भी कोई ही वाज नॉट नोन एज ए कास्ट लीडर। तो ये जो कास्ट लीडर के एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड, एक सौम्य, एक अपने एरिया में प्रभाव रखने वाले, जिनका अपना क्षेत्र और अपने आसपास के 2-4 क्षेत्रों में प्रभाव होगा। तो परसेप्शनल गेन के रूप से देखें तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा परसेप्शनल गेन नहीं है इससे, जो रिकवरी अगर कास्ट पॉलिटिक्स या ओबीसी मोबिलाइजेशन को लेकर करना चाहें। लेकिन ग्राउंड पे कुछ क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा, खास करके जो उनका क्षेत्र है कुशीनगर, जो ईस्टर्न यूपी का वो वाला बेल्ट है, गोरखपुर से आगे उस तरफ जो आप जाते हैं, छपरा के आसपास तक का बिहार के पहले का, उस एरिया में उनका असर पड़ेगा। और लेकिन कोई बहुत बड़ा इससे परसेप्शनल गेन बीजेपी को नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक रिकवरी होगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो एक धक्का लगा है वो कहीं ना कहीं रिकवर होगा, और ये एक तरह का ऐड तो करता है बीजेपी के पॉलिटिक्स में, लेकिन बहुत बड़ा एडिशन नहीं है, इतना बड़ा एडिशन नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा वो कर सके। लेकिन it's going to add in BJP politics, I can see.